ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੋਕਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੋਕਨ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਸੁਲਾਨਾ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਲਾਨਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਲਾਨਾ USDT ਇਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਬਗੈਰ ਇਹ ਚਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਵੱਡੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰਟ ਆ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ 1 ਡੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 1 ਵੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1 ਵੀਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ, ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਲਾ ਲਓ ਕਿਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਲੱਗ ਗਈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਜ਼ੋਨ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਜ਼ੋਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਵਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਕੋ ਇੱਥੇ ਕਿ ਲਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਾ ਲਓ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸਪੋਰਟ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਫਿਰ ਅਰਾਊਂਡ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਲੱਭ ਜੂਗੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਓ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਓ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਬੋਟਮ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਵਾ ਸਪੋਰਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸਾਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1 ਡੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 1 ਡੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ 150 52 53। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਕ ਵੀ ਮਾਰ ਲਵੇ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਵਿਕ ਅਗਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ कर लेना, यानी कि सबसे पहले ये काम करना है। ठीक है, ये बेसिक काम होता है। अच्छा उसके बाद क्या होता है कि जी अब आपने ये चले जो जनाबे वाला 1 डे है ना, इसके बाद आप सॉरी ये वाला टूल भी यूज़ कर सकते हो, ये वाला फिब वाला। ठीक है, ये वाला भी यहाँ पे लगा के देख सकते हो। ठीक है, ये देखें 0.7 का एरिया बना, ये वाला ये ये टॉप था और ये बॉटम था, यानी कि यहाँ से जो मार्केट ऊपर गई है अभी ऊपर ही है। तो ये देखें ये वाला जो था वो अराउंड आपका ये 0.7 वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो नज़र आ रहा होगा आपको, ये देखें। ठीक है, ये वाला जोन 0.7 एरिया जोन, इसका कलर थोड़ा चेंज मैं कर दूँ, लेकिन एक सेकंड अब नज़र आ रहा होगा। तो ये देखें ये वाला कि जोन भी है, तो इस जोन से जो है वो सपोर्ट मिलती रही है। ऊपर ये वाला 0.6 वाला जो है वो भी रेजिस्टेंस दे रहा है। ठीक है, ये वाला एरिया सारा, तो जब ये क्लेम हो जाएगा फिर 0.6 वाला एरिया सपोर्ट देगा। ये सारा अभी 0.6 वाला एरिया रिजेक्शन दे रहा है, गोल्डन जोन से रिजेक्शन हो रही है इसकी, और ये अभी रिसेंटली भी उसकी हुई है, यानी कि आज के दिन में भी हुई है। ठीक है, तो ये यहाँ से रिजेक्शन दे रहा है अभी फ़िलहाल, तो ये भी लगा सकते हैं आप। ठीक है,
मतलब मज़ीद कन्फर्मेशन थोड़ी सी ले, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा ये हो गया, एक प्लस पॉइंट ये भी आपके पास आ गया कि ये मैंने लगा के देख लिया। अच्छा इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप लगा के देख लो यहाँ पे आर एस आई। ठीक है, आर एस आई लगा के देख लिया। अब जब यहाँ पर थी प्राइस आपकी इस जोन के पास पास, तो आर एस आई तकरीबन ये देखें यहाँ पर क्या था, यहाँ पे प्राइस ज़्यादा थी, यहाँ पे प्राइस कम है, तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस आपके पास आ गई इस जगह पे, ये वाली। ठीक है, ये यहाँ से देखो ज़रा, सॉरी यार। अच्छा ये यहाँ पे क्या हुआ है, ये कुछ ऐसे करके, ठीक है ये आ गई। अच्छा अब इसको मैं कर देता हूँ छोटा थोड़ा। ठीक है जी, अब क्या हुआ कि आपके पास सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है, ये वाली सपोर्ट है। यहाँ पर प्राइस पहले भी आई थी, ऊपर चली गई प्राइस, तो यहाँ पे आर एस आई ओवर सोल्ड थी। उसके बाद दोबारा प्राइस जब यहाँ पे आई है, तो प्राइस इस पॉइंट की निस्बत यहाँ पे कम हो गई है, लेकिन आर एस आई की वैल्यू ज़्यादा है। डेली टाइम फ्रेम मैं खोल के बैठा हूँ, मैं कोई यानी कि छोटा टाइम फ्रेम नहीं लिया हुआ, तो ये एक बुलिश डाइवर्जेंस है, तो बुलिश डाइवर्जेंस ने काम किया, तो ये यहाँ से फिर जो है वो रिट्रेस कर गया, तकरीबन आपका सोल यहाँ से चला गया 13-14% तक ऊपर चला गया। ठीक है, अब ये चीज़ें होती हैं जो आपने देखनी होती हैं ट्रेड को लेने से पहले। बाकी आपने बिटकॉइन को देखना होता है कि यार बिटकॉइन कहाँ पे चल रहा है, उसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, वो कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि वो रेजिस्टेंस पे हो, आप इस जगह पे कहीं बैठे हो, तो फिर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। आपको ये चीज़ जो है वो मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी, ये वाली। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि ये अभी स्टिल अप ट्रेंड के अंदर ही चल रही है। ठीक है, यानी कि आर एस आई का भी जिस तरह इसका ट्रेंड है ना, इसका चार्ट का, इस तरह आर एस आई का भी ट्रेंड है, तो वो भी क्या कर रहा है, वो भी स्टिल अभी अप ट्रेंड के अंदर ही जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो ये आपने मार्क एक लाइन लगा ली, तो ये अब इसके ऊपर जो है वो चल रहा है, तो ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा, नो डाउट नीचे भी आएगा जिस तरह ये देखें। तो यार क्यों होया, आवाज़ आ रही है? जी जी जी। अच्छा, तो ये जो होता है ना आपका, मतलब आपको एक कंफर्मेशन मिल गई कि यार ये मेरा जो है वो एक अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में मैं अभी रह सकता हूँ। अदरवाइज यहाँ से आप निकल भी सकते थे, लेकिन ये चीज़ ने आपको बचा लिया कि यार अभी यहाँ पे आर एस आई जो है वो, ये देखें अभी नीचे इस तरह कर दी, ये अब ऊपर जाएगी। जब ये ओवरसोल्ड ओवरबोर्ड जोन एरिया में जाएगी, फिर हो सकता है फिर ये नीचे आए। अगर तो ये डाइवर्जेंस देती है आगे जाके, तो फिर आपको वो मजीद जो है वो मिल जाएगी। जब अभी तो फिलहाल नहीं है ऐसा, अभी तो फिलहाल ही जो है वो जा रही है। बाकी आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में आ जाएंगे, 4 आवर पे ले जाएं, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जो है वो कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ठीक है, सॉरी इसको। हम्म। बा, बाकी जो है ना वो जब ये देखें यहाँ पर, अब आ रहा है यहाँ पे आपको ओवरसोल्ड थी, ऊपर चली गई प्राइस, दोबारा फिर आई। अब यहाँ पे तो आपको उतनी लग रही है जितनी इधर है, इतना इधर है, तो मतलब इधर तो खास फर्क फिलहाल नहीं नजर आ रहा, लेकिन डेली टाइम फ्रेम के अंदर तो है ना काफी फर्क। ठीक है ना, जी 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 बिल्कुल। 4 आवर टाइम फ्रेम पे फ़र्क नहीं है इसमें, लेकिन डेली टाइम फ्रेम के अंदर इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। यानी कि ये वैल्यू 33 थी यहाँ पे, और यहाँ पे कितनी है, तकरीबन 33 है, यहाँ पे 39-40 है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो इसका मतलब ये है कि आप रह सकते हैं। बाकी आपने शॉर्ट टाइम फ्रेम लिया होता, तो वो एक उसका अलग सिनेरियो होता, फिर आप उस हिसाब से आर एस आई को देखो। अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम लेके बैठे हो, तो फिर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको देखोगे, यार इसके अंदर जो है वो कहाँ पे बन रही है, मेरे पास जो है वो डाइवर्जेंस। अब जिस तरह ये देखो, यहाँ पे ये वाली देखो, ये 4 आवर पे ऐसे, ठीक है, और यहाँ से देखो ये वाली, ठीक है, यहाँ पे देखो प्राइस, हम्म, प्राइस क्या थी, प्राइस यहाँ पे कम थी, आरएसए की वैल्यू ज़्यादा थी, उसके बाद प्राइस यहाँ पे ज़्यादा हो गई है, आरएसए की वैल्यू कम है, तो मतलब ये कि वैल्यू ये कम यहाँ होगी। पे आपकी एक डाइवर्जेंस बन गई। उसके बाद फिर ये प्राइस ने डंप डाइवर्जन। दिया, फिर ओवरसोल्ड एरिया में आई, और जब ओवरसोल्ड एरिया में आई, तो ये देखें यहाँ से फिर उसने सर्वाइव किया। अब ये दोबारा फिर ओवरबोर्ड जोन एरिया में जा रही है प्राइस, और ऊपर से रेजिस्टेंस भी आ रही है, तो थोड़ी सी आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। अगर इसके पास पास जाता है, तो फिर ये थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, तो मतलब ये कह सकते हो कि आप एक ओवरबोर्ड जोन एरिया में चली जाएगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो इसको आर एस आई लगा के, एक ये भी तरीका होता है, मतलब तरीका है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर आप इसको जो है वो, मैं यहाँ से हटा देता हूँ।
अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपने इसको मैं डिलीट करके यहाँ से आप क्या करें, यहाँ से आप MACD लगा के देख सकते हैं, ठीक है, मूविंग एवरेज वाली। तो ये मूविंग एवरेज आपने देखी है, ठीक है, इसको मैं 1 डे के ऊपर लेके जाता हूँ। 1 डे के ऊपर मूविंग एवरेज क्या कर रही है, तो ये देखिए 1 डे के ऊपर मूविंग एवरेज ने भी क्या किया है, यहाँ से क्रॉस किया था इस जगह से, ठीक है। अब यहाँ से भी देखो तो नीचे नहीं आई, ये ब्लू लाइन स्टिल ऊपर ही है, ठीक है। ब्लू लाइन क्या है, जी इसके ऊपर या क्रॉस ओवर हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो प्राइस डंप जरूर हुई है, लेकिन जो है वो आप वहाँ से देखो RSI से, तो वहाँ से और कहानी है, यहाँ पे इसकी और कहानी है। तो इसका मतलब ये है कि अभी स्टिल इसके अंदर ये देखो वॉल्यूम अभी आ रहा है, वॉल्यूम बन रहा है, मोमेंटम अभी है। तो ये क्या हो रहा है कि अभी मोमेंटम बन रहा है प्राइस के अंदर, यहाँ पे क्रॉस ओवर नहीं हुआ। अगर यहाँ पे हो जाता तो फिर शायद प्राइस आपकी फॉल करती, लेकिन जो है वो फॉल नहीं किया प्राइस ने। तो एक यानी कि ये भी है कि यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ था इस जगह पे, प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद दोबारा नीचे से गिरी है। लेकिन ये वाला जो था ना वो आपका क्रॉस ओवर नहीं हुआ, यानी कि इसने क्रॉस नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मार्केट में अभी भी रह सकते हैं। एक ये भी पॉजिटिव साइन था आपके पास, इंडिकेशन मिल गई आपको ये वाली, ठीक है, कि यहाँ से भी अभी स्टिल अभी है। और दूसरी वो आज भी मैंने आपको RSI समझाई है कि वो उसमें भी कुछ ऐसा सीन आ गया था, ठीक है। और बाकी आप इसमें बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है, और कोई ख़ास जो है वो चीज़ें नहीं होती। बाकी ये होता है कि यार आप ये फाइंड करो कि भाई किसका जो है वो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, मतलब कौन से कॉइन्स किस तरह के या किस कैटेगरी के कॉइन चल रहे हैं। वो कैटेगरी भाई चेंज होती रहती है, उसको लिए फिर आपको मार्केट के अंदर इन रहना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो देखने के लिए फिर आपको जो है वो सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ करो, तो वहाँ पे आपको चीज़ें मिलती रहती हैं। तो ये ट्रेंड के हिसाब से होता है, चीज़ें चलती हैं। कभी मीम कॉइन का हाइप बननी शुरू हो जाती है, मीम कॉइन पंप कर रहे होते हैं, बाकी कॉइन नहीं करते। कभी रॉ कॉइन होते हैं, कभी AI कॉइन्स होते हैं, कभी कोई होते हैं। तो फिर वो एक ट्रेंड सेट होता है मार्केट में, फिर उस ट्रेंड के अंदर ही पैसा आ रहा होता है। तो बाकी जिसके अंदर पैसा लगा होता है आपका, वो काम तो कर रहा होता है, लेकिन मसला ये होता है कि फिर उसके अंदर जो मूवमेंट होती है ना वो बहुत स्लो होती है दूसरे कॉइन्स में। जो चीज़ ट्रेंडिंग पे होती है ना उसके अंदर ज़्यादा वॉल्यूम होता है, वो ज़्यादा अप एंड डाउन हो रही होती है जो ट्रेंडिंग पे होती है। जो ट्रेंडिंग पे नहीं है चीज़, वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आपकी मूव करेगी, ठीक है। तो उसमें चांस ज़्यादा होते हैं कि आपको टाइम ज़्यादा गेन करना पड़ेगा, लेकिन जो चीज़ ट्रेंडिंग में है उसमें टाइम थोड़ा कम स्पेंड करना पड़ता है, जल्दी उसका फैसला हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा बाकी तो मैं आपको सब कुछ वो बता चुका हूँ। बाकी ये मेन चीज़ें यही होती हैं जो आपको देख के समझ आती है कि यार मैंने सपोर्ट बनाई है। सपोर्ट वो बनानी है जो तगड़े टाइम फ्रेम वाली हो। ऐसा नहीं करना कि ये 5 मिनट खोल के तो जनाब जो है वो आप कहें अच्छा ये RSI ऐसे हो रही है, RSI वैसे, तो वो फिर काम वो मज़ा नहीं आएगा। क्या मार्केट काम तो वैसे ही जी करती है, लेकिन मसला ये होता है कि फिर उसमें आपकी एक्यूरेसी नहीं होती। फिर उसमें जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा ना, लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि यार ये देखो अभी ये 5 मिनट का है ना, तो मैं यहाँ से लेता हूँ 5 मिनट के हिसाब से ये वाला, ठीक है, ये 5 मिनट। तो मैं ये कहता हूँ कि यार ये अभी जो है मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट क्या कर रही है, डाउन ट्रेंड में है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ से सॉरी यहाँ से मैंने शॉर्ट पोजीशन लेनी है, तो मैं वेट करूँगा इस लाइन के आसपास आते आते, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से अपना टारगेट इतना रख लेता हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पे रख लेता हूँ। अब क्या होगा कि अगर तो प्राइस यहाँ पे आती है, यहाँ पे प्राइस आती है तो मेरी क्या होगी, शॉर्ट रेट लग जाएगी। उसके बाद प्राइस अगर नीचे गिर गई, ठीक है, नहीं तो ये आपका जल्दी स्टॉप लॉस हिट कर देगी। मतलब ये कि आपने 145 पे एंट्री ली और 145 या 9 पे आपका एसएल होगा, तो वो एसएल जल्दी आपका हिट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा बीटीसी ने भी 1000 की फ्लक्चुएशन की ना, तो ये आपका ट्रेंड इजीली ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि ये कोई बड़ा ट्रेंड नहीं है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है डाउन ट्रेंड। ये सिर्फ एक लोअर टाइम फ्रेम का है, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम का नहीं है। तो इसके अंदर वो एक कन्फर्मेशन काम है। अभी बिटकॉइन यहाँ से अभी चल रहा है 59,941 पे चल रहा है। तो अभी बिटकॉइन यहाँ से अगर लेट्स सपोज $1500 की अगर मार देता है, तो वो ये इजीली आपका अभी प्राइस है 144.9, तो ये आपका जल्दी एसएल जो भी हिट हो जाएगा। हाँ, इसमें क्या है कि फिर एसएल हिट होगा तो आपका लॉस कितना होगा। मिसाल के तौर पे आपने ये ट्रेड पकड़ी यहाँ से डाउन ट्रेंड पे, तो यार यहाँ से क्या होगा कि ट्रेंड कंटिन्यू अगर चलता है तो ठीक है, नहीं चलता तो फिर अब आपका स्टॉप लॉस कितना होगा। यहाँ से अगर आपने ट्रेड पकड़ी तो ये आपका 3.3% एस एल होगा, जिनके 0.3 आपका स्टॉप लॉस है। और आपका जो रिवार्ड होगा वो भी क्या होगा, वो भी तकरीबन आपका कोई एक तकरीबन कोई 1.2% आपका रिवॉर्ड है, ठीक है। जी तो रिवॉर्ड ज़्यादा है, लॉस कम है। तो यहाँ से क्या होगा कि अगर फिर वो ब्रेक करेगा
तो फिर हो सकता है अच्छा ब्रेक करने के बाद एक और भी सीन हो सकता है इसको वो होल्ड ही ना करे तब दोबारा रीटेस्ट करने आए ना, मतलब कि जब इसको वो अगर हाँ ब्रेक जी। कर देता है ट्रेंड को, तो ये अगर स्टॉप लॉस हिट करके वापस इसको रीटेस्ट करने आता तो हो सकता है वो रीटेस्ट इसका सक्सेसफुल ही ना हो, क्योंकि ये लो टाइम फ्रेम का ट्रेंड है। अगर बीटीसी फॉल किया तो ये ऑटोमेटिकली उसी वक्त टूट जाएगा, तो ये होल्ड नहीं कर पाएगा ये वाली हम्म, लाइन को, ठीक है। तो ये शॉर्ट टाइम फ्रेम का थोड़ा नुकसान होता है, लेकिन प्रॉफिट भी आ जाता है अगर आप करना चाहो तो। फिर वो उसमें ये है कि रिस्क कम ही है, इतना ज़्यादा नहीं है रिस्क, तो आपका 0.3% है। नहीं तो थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना यहाँ पे, मतलब आपको ज़्यादा अगर सेफ रहना है तो फिर आप क्या करो, थोड़ा सा ऊपर ले जाओ और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपकी एक रेजिस्टेंस है इस जगह पे, ये देखो यहाँ से प्राइस गिरी है, 3 दफ़ा यहाँ से गिरी है, फिर यहाँ से गिरी है, फिर यहाँ से गिरती है। तो फिर क्या होगा कि आपका ये वाला जो है ना, ये वाला एक लेवल है, ये आपको थोड़ा सेव कर लेगा इस जगह पे आकर। हो सकता है यहाँ पे फिर रिजेक्शन मिल जाए तो आपका एसएल सेफ हो जाए, अगर यहाँ से निकल गया तो फिर आपका एसएल जो है पक्का हिट हो जाएगा। तो ये शॉर्ट टाइम फ्रेम की कहानी ऐसी है कोई। लेकिन अगर बड़े टाइम फ्रेम पे चलिए। जाते हैं तो वो फिर उसमें स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा होता है, मतलब इतना ही बड़ा नहीं होता, ये होता है को 8-10% का हो जाएगा, 12% का हो जाएगा, 15% का। मिसाल के तौर पे अगर आपने $100 लगाया स्पॉट में, तो आपका 15% का स्टॉप लॉस है, तो आपके $15 जो है वो चले जाएंगे, 85 आपके पास रह जाएंगे। तो अगर रिवॉर्ड होगा तो हो सकता है आपका जो रिवॉर्ड है वो $100 लगा के $60-70 का रिवॉर्ड हो, लेकिन फिर उसके लिए वेट भी उतना करना पड़ेगा। इसके लिए वेट नहीं होता, ये शॉर्ट टाइम फ्रेम पे वेट नहीं होता इतना, ये जल्दी इसकी कहानी जो है वो किसी ना किसी साइड पे लग जाती है। लेकिन जब आप वीकली या डेली टाइम फ्रेम लेते हैं तो फिर उसमें, या 4 आवर का टाइम फ्रेम लेते हैं तो फिर उसमें उतना ही टाइम आपको रिक्वायर्ड होता है। फिर उसी हिसाब से आपने ट्रेड करनी होती है, मार्केट को देखते हुए सारे अपने जो है वो टूल वगैरह यूज़ करते हुए, ठीक है। तो फिर ये होता है जी सर। और कुछ भी नहीं है। या आप वो यूज़ कर लो यार, इसमें ईएमए मैंने समझाया था, आप वो यूज़ कर लो, ठीक है। मूविंग एवरेज यूज़ कर लो, 200 की डेली टाइम फ्रेम पे यूज़ कर लो, या आप उसकी कर लो, 25 की भी कर सकते हो, 50 की भी कर सकते हो, ठीक है, डेली टाइम ये फ्रेम। 200 की तो सही स्ट्रांग होती है ना? भाई देखो, या जितनी एवरेज? जितना ज़्यादा कैंडल की लोग है ना उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा कैंडल कवर करोगे, मतलब जितनी ज़्यादा की लोग उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी कम करेंगे उतना ही वो कम होगी, ठीक है ना। तो अगर जी जी। 200 किया तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर वो ब्रेक होती है तो फिर डेफिनेटली मार्केट में सेलिंग प्रेशर आपका वो वहाँ से नीचे जाएगा, अगर क्लोजिंग उसके नीचे हो जाती है तो। जिस तरह आजकल लोग कह रहे हैं कि जी वो 200 ईएमए जो है वो बीटीसी उसके नीचे आ गया, तो वो जब तक इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तो बेरिश ही कंसीडर होगा, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह का सिनेरियो है। जी जी। तो आप फिर वो 200 भी ले सकते हैं, 25 भी यूज़ कर सकते हैं, 50 भी यूज़ कर सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, या 4 आवर पे भी लगा के देख लें, तो वो भी एक आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो उससे भी आपको थोड़ा अच्छा। आइडिया हो जाता है चीज़ों का। तो इसका मतलब सिग्नल बनाना सौखा नहीं। यार आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर सही पैसा कमाना है ना, सही पैसा कमाना है, मैं आपको ट्रिक, आप सिर्फ ना सिर्फ और सिर्फ अगर आप फ्यूचर ट्रेड करने वाले बंदे हो ना, तो आप ऑल्ट्स कॉइन के ऊपर फ्यूचर ट्रेड ना करो, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, ठीक है। आपने ट्रेड करनी है फ्यूचर में तो सिर्फ बिटकॉइन के ऊपर करो और इथेरियम के ऊपर करो, बस इसके अलावा किसी के ऊपर ना करो। ऑल्ट कॉइन को छोड़ दो, हाँ, या ऑल्ट कॉइन वो लो जो अच्छे हैं, यानी कि जिस तरह सोल हो गया, इसके अंदर आपको पता है कि यार ये इतना गिरता नहीं है ना इतना ऊपर जाता है, यानी कि इसके अंदर आप प्लस माइनस करके निकल जाओगे। मतलब वो ऐसा कॉइन ना लो जो अभी पंप हो रहा है और उसके बाद वो इतना डंप हो, या इतना वो एक लो मार्केट कैप वाला हो, जब उसके अंदर मार्केट कैप आए, वॉल्यूम आए तो पंप हो जाए, आपने ऊपर से बाय किया, जब उससे वॉल्यूम निकले तो आपका 30-40-50% गिर जाए, तो उससे फिर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप स्पॉट में करना चाहते हैं तो आप लो वॉल्यूम कैप के जो कॉइन्स हैं वो लेकर उनको छोड़ दें, चले प्रॉफिट दे देगा, होल्ड कर लें। लेकिन अगर आप फ्यूचर ट्रेड करने वाले बंदे हैं तो फिर आप ना कोशिश करें कि जितना हो सकता है ना वो बिटकॉइन और इथेरियम के ऊपर या सोलाना के ऊपर, या एडीए कॉइन है वो ले लें, मतलब सोल, एडीए, इथेरियम, बिटकॉइन, और यानी कि ये टॉप के जो आते हैं ना, डोज कॉइन भी ठीक है, उसकी भी कोई ज़्यादा बड़ी मूव नहीं होती, वो भी ज़्यादा इतना नहीं सर करता। अकाला, अकाला कैसा है सर? यार वो लो मार्केट कैप वाले बहुत नीचे चले जाता है, काला काला गोला वो बहुत नीचे चले जाते हैं, वो ऐसे वो मतलब। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो टॉप के कॉइन्स है ना उनके अंदर, जिस तरह एडी है, मैटिक है, सोलाना है, इसके अंदर टॉप फ्लैक्चुएशन, 10, टॉप 10 या? ठीक है ना, इसके अंदर फ्लैक्चुएशन नहीं इतनी होती, क्योंकि इनको अगर पंप करना है तो इन, क्योंकि ये हाई मार्केट कैप वाले होते हैं ना कॉइन्स, तो इनको पंप करने के जी लिए उतना ही ज़्यादा पैसा चाहिए होता है कि अगर आपने इसकी प्राइस को पंप करना है, तो लिहाजा ना तो ये जल्दी पंप होते हैं ना जल्दी ये डंप, मतलब स्लोली स्लोली होते हैं, कि चलो यार आपको इनकी उम्मीद भी होती है कि ये वापस आ जाएंगे, लेकिन
कुछ मैं फिर भी कहूँगा कि यार आप ये भी कंसीडर ना करो, एक्सआरपी भी छोड़ दो, जो है वो मैटिक भी छोड़ दो। मैं कहूँगा सिर्फ बिटकॉइन, अथेरियम, सोलाना, ये तीन बेहतरीन हैं और इनके अंदर आप जो है वो ट्रेड करते रहो। स्कैल्पिंग करोगे तब भी कुछ ना कुछ आपको आ जाएगा। लेकिन ऑल्ट कॉइन के अंदर आप लोगे तो ऑल्ट कॉइन फिर जो है वो जब गिरता है ना, क्योंकि ऑल्ट कॉइन का मसला ही होता है कि जब बीटीसी के साथ अगर आपने उसको ट्रेड किया है तो बीटीसी तो चला जाता है, लेकिन वो ऑल्ट कॉइन नहीं ऊपर जाता। अब आपने क्या होता है कि आपने तो उसको देखा होता है कि यार ये बीटीसी जाएगा सपोर्ट से, तो साथ इसको भी ले हम्म, जाएगा। और बीटीसी तो चला जाता है, उधर से डोमिनेंस भी बढ़ जाती है। वो डोमिनेंस बढ़ती है तो आपके आल्ट्स कॉइन उतना मूव नहीं करते जितना उनको करना चाहिए। तो वो फिर क्या होता है, आपका वो जो आल्ट कॉइन होता है वो उधर ही फंसा रहता है, बीटीसी ऊपर चला जाता है, बीटीसी ऊपर से नीचे गिर जाता है, और ये जो आपका उधर फंसा होता है एंट्री से, वो नीचे की तरफ मुंह कर लेता है। फिर बीटीसी करेगा थोड़ा सा ऊपर, वो फिर एंट्री के आसपास भी नहीं आएगा, बीटीसी गिरेगा वो फिर स्टॉप लॉस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो ये थोड़ा इसके अंदर इश्यूज हैं ऑल्ट कॉइन के ऊपर अभी की कंडीशन में। कल को बेहतर भी हो सकते हैं। तो बताने का सिर्फ मकसद ये है कि या तो कोई ऐसा कॉइन लो जिसमें जल्दी टाइम लेके निकल जाओ। बाकी अगर आपने होल्ड करना है तो मैं नहीं समझता यार फ्यूचर में कोई कॉइन, ऑल्ट कॉइन को होल्ड करना कोई बड़ी अकलमंदी नहीं है कि अगर आप फ्यूचर में किसी ऑल्ट कॉइन को होल्ड करके बैठे हैं। ठीक है, स्पॉट में कर लें कोई इशू नहीं है, स्पॉट में चलें ठीक है यार, छोड़ दिया कोई बात नहीं है, पड़ा है ना यार, लिक्विडेशन की टेंशन तो नहीं है। फ्यूचर में फिर आप फंस जाते हो। बीटीसी का आपको पता है कि यार 57 पे भी लिया होता मैंने, 58 पे भी या 55 पे भी लिया होता तो कोई बात नहीं यार, मेरा निकल ही जाना था। या अभी 60 से भी आपने लॉन्ग किया, 55 पे चला गया, आपको पता है इसने आ ही जाना 60 पे, वो आ गया। ठीक है, 54 से 60 पे आ गया, लेकिन ऑल्ट्स कोई नहीं आए। समझ रहे हैं ना बात को? सही बात है भाई। तो ऑल्ट्स कॉइन के ऊपर ट्रेड सही कर, हो गया सर ये। अगर 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 फ्यूचर ट्रेड करनी है और वैसे मतलब वाकई पैसा बनाना है, तो फिर आप बिटकॉइन को पकड़ लो, और बिटकॉइन से बहुत अच्छा प्रॉफिट आता है। ये मेरी बात आप याद रखना कि बिटकॉइन से बहुत अच्छा प्रॉफिट आता है। आप क्या करो, आपके वॉलेट में अगर आप $1000 भी लगाते हैं लेवरेज के साथ भी टोटल मिला के, तो 1000 भी लगाते हैं ना, तो आपको कुछ ना कुछ अच्छी जो है वो आ जाएगी अर्निंग। और उससे क्या होगा कि आप की लिक्विडेशन भी सेफ रहेगी और आपको टेंशन भी इतनी नहीं होगी, क्योंकि जो आल्ट्स कॉइन होता है ना, इसके ऊपर अगर थोड़ी सी बड़ी ट्रेड लग जाए ना, तो फिर ये इसकी लिक्विडेशन भी आ जाती है और फिर ये लिक्विडेट भी कर देता है। ठीक है, और दूसरी बात ये होती है कि आपने कॉइन लिया, कल को न्यूज़ आ जाए जी फलाना कॉइन डीलिस्ट हो रहा है, आपकी ट्रेड फंसी हो 20% लॉस में, बस न्यूज़ आ गई है डीलिस्ट हो रहा है, आप गए, आप कुछ नहीं कर सकते, बस वो फिर खल्ली बल्ली, वो हिसाब होगा आपका। ठीक है ना? जिस तरह भी कुछ लोग, हाँ, सही ये सही। कुछ लोगों ने ट्रेडें मतलब जिन्होंने लगाई थी, जिस तरह अभी रेंडर की लोगों ने ट्रेड्स लगाई थी, तो रेंडर भी लोगों ने कहीं चले, किसी ने 8 पे लिया, किसी ने 9 पे लिया। अब जिसने स्पॉट में लिया होगा उसको तो मसला नहीं है, क्योंकि वो दोबारा रिस्टोर होके आ जाएगा नए नाम के साथ। लेकिन जिस बंदे ने उसको किया है, फ्यूचर के अंदर लॉन्ग किया है $8-9 से, या तो वो तो फंस गया ना। अब जब वो डीलिस्ट होगा एक्सचेंज ओके। से, तो उसकी तो ट्रेड भाई क्लोज हो जाएगी। तो वो तो, उनको तो नहीं इस चीज़ का गर्ज एक्सचेंज को कि आपकी लॉस के अंदर हम क्लोज कर रहे हैं। वो तो बस जब पेयर डीलिस्ट होगा तो आपके ऑटोमेटिक ट्रेड क्लोज, और जो बाकी बचेगा वो आपके वॉलेट में आ जाएगा, जो थोड़ा बहुत बचेगा आपका। लेकिन स्पॉट में चलो ये है कि कोई बात नहीं यार, प्रोजेक्ट अच्छा है, नाम चेंज होगा दोबारा फिर आ जाएगा, दोबारा फिर जो है वो कुछ आने वाले टाइम में जो है वो कर जाएगा। तो इस तरह थोड़ा सेफ साइड हो जाती है ये भी। लेकिन बिटकॉइन वो चीज़ है, कोई भी एक्सचेंज इसको डिलिस्ट नहीं कर सकती। ना बिटकॉइन को कर सकती है, ना थीरियम को कर सकती है, ना सोलाना को कर सकती है। टॉप 10 के तो बहुत ही मुश्किल है ना कि डीलिस्टिंग हो किसी भी एक्सचेंज के ऊपर से। बहुत ही कोई रेयर केस हो जाए, कोई मतलब इतने गंदे हालात हो जाए, फिर बेशक फिर हो सकता है, शायद वाली बात है। लेकिन ना तो कोई भी एक्सचेंज डीलिस्ट करेगी बिटकॉइन को, ना कोई थीरियम को करेगी, और ना ही कोई सोलाना को या टॉप 10 कॉइन्स में से किसी को डीलिस्ट नहीं करेगी। हाँ, बाकी लो मार्केट कैप वाले होते रहते हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो फिर उसमें अगर आपका पैसा पड़ा तो वो फिर ज़ाया हो जाता है। तो ये सारी कहानी है। फ्यूचर में फिर ये होता है सारा। ठीक है ना? सर जी, एक हाई कॉइन है, तो उसका क्या सीन है, कोई है उसका? फौत हो गया। तो बस मोए मोए मुझे लगता फौत मर हो गया गया। सर जी, तो जनाजा चक दो। यार उन्हें बहुत टाइम लाना जिथे पहुंच गया ना वो। अब ये उनको। अब ये जो है ना कॉइन जिस तरह सोलाना है, तो सोल, अब यहाँ पे देखें, अब आपने ट्रेड पकड़ भी लिया तो ये अभी यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, यहाँ तक 149 तक चला जाएगा, लेकिन बीटीसी भी आपका क्या हो जाएगा, बीटीसी ज़्यादा से ज़्यादा अभी जाएगा भी तो 61 500 को जल्दी क्रॉस नहीं करने वाला बिटकॉइन। अगर करेगा तो फिर बिटकॉइन की वो कहानी सारी बदल जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल नहीं करेगा, क्योंकि सीमी गैप जो है ना वो भी है नीचे। और कल को जब ये ओपन होना ना, सीएमई क्या कहते हैं वो, शिकागो मार्केट जो है वो जब ओपन होना है ना, तो उसमें गैप आएगा, क्योंकि वो अभी क्लोज है। कहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट।
वो अभी जो है ना वो है जी, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, मैं अभी बिटकॉइन की प्राइस अगर आप करंट देखो ना, करंटली प्राइस जो बिटकॉइन की चल रही है तकरीबन 60,000, और ये यहाँ पे क्लोज है 5784 पे। ठीक है, यहाँ पे देखना हो ना तो ये देखें मार्केट, यहाँ से ऊपर करके ना ये देखें अभी लिखा आ रहा है मार्केट क्लोज है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, मार्केट क्लोज। तो यानी कि ये वाली जो है वो मार्केट जो है फिलहाल यहाँ पे क्लोज है। तो अब क्या होगा कि जब ये कल को ओपन होगी तो ये ओपन पता कहाँ पे होगी, ये होगी जो अभी प्राइस चल रही है। अब क्या प्राइस चल रही है, अभी चल रही है तकरीबन 60,000, तो ये यहाँ पे जाके ओपन होगी, तो ये वाला इतना सारा गैप आ जाएगा इसके अंदर। तो जब वो गैप आएगा तो फिर वो गैप फिल करना होता है इसने, तो फिर वो एक नया पंगा शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सैटरडे संडे था तो सैटरडे संडे में पंप हो गया बीटीसी, इसलिए फिर ये गैप इतना बढ़ गया। अगर ना होता फिर तो कोई मसला नहीं था, फिर तो अभी तो फिलहाल ये तो बंद है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट सारी बंद है ना। जिस तरह देखें SP 500 है, ये भी मार्केट क्लोज है, तो जी जी। ये तो कल ओपन होंगे सारी। ठीक है, ये जितने भी फॉरेक्स से रिलेटेड पेयर्स है ना, तो ये तो सारी मार्केट क्लोज है सैटरडे संडे को। तो जब ये कल क्लोज होगी, स्टॉक भी कल ओपन होंगे, तो यहाँ पे देखें सब कुछ लिखा क्लोज आ रहा है, मार्केट क्लोज है। लेकिन अगर यहाँ पे बीटीसी करेंगे ना आप, तो यहाँ पर बीटीसी का गोल्ड भी इस वक्त, ये देखिए गोल्ड की मार्केट जो है वो क्लोज है। ठीक है, ये 2410 पे इस वक्त क्लोज है, गोल्ड भी लॉक है। अब पता नहीं कल को हो सकता है कि यहाँ पे खुले 61 पे खुले, नीचे खुल जाए, वो फिर कहाँ खुलता है ये पता नहीं, अब कहाँ पे ट्रेडिंग इसकी शुरू होगी। अब बीटीसी देखें तो बीटीसी देखें मार्केट ओपन है, तो ये कभी क्लोज होती नहीं है, क्योंकि बीटीसी 24 आवर और 7 डेज चलता ही रहता है, इसमें क्लोजिंग वाला कोई चक्कर नहीं है क्रिप्टो में। तो ये यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन लिखा आ रहा है। सही है। अच्छा सर जी, मेरी 6200 ਦੀ एंट्री है, तो मैं फिर डीसीए कराया तो थोड़ा बहुत ही हाल छाड़ दूंगा। नहीं, अभी तो करने का फायदा, अभी तो करने का फायदा कोई नहीं। अब तो बहुत, अब तो इंटरव्यू के पास पास आ गया करना हुआ तो नीचे करना। जब ये अगर दोबारा 59 या 58 57 की रेंज में अगर जाता है तो फिर करना। अभी तो करने का कोई फायदा नहीं होगा, अभी तो फिर नीचे गया तो बहुत लॉस बढ़ जाएगा। या इसको छोड़ के ना आप सही ना है, करो, इसको किसी दूसरी एक्सचेंज पे नीचे से जाकर लॉन्ग कर लेना। ये भी सही है। मतलब इसको ऐसे छोड़ दो, अगर ये नीचे आता है 57 पे हम्म, या 58 पे, तो किसी दूसरी एक्सचेंज पे फंड्स डाल के ना, तो नीचे से लॉन्ग हाँ कर जी, लेना। तो जब नीचे से लॉन्ग करोगे, ऊपर जब जाएगी प्राइस, तो वो आपका उधर से एक जगह से प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आएगा, दूसरी जगह से आपका लॉस कम होगा। तो बेशक वो फिर थोड़ा सा, अगर एक जगह से 20-25 अगर लेट्स सपोज आपके डॉलर आ रहे हैं प्रॉफिट में, और अगर दूसरी साइड से आपको 10-15 माइनस में जा रहे हैं, तो आप उधर से प्रॉफिट ले लेना, उधर से 10-15 लॉस लेके, तो फिर भी आप 10-15 प्रॉफिट के अंदर ही निकल जाओगे। बाकी ये अब हाँ आपको जी, पता सही हो गया, है आपकी जितनी भी लगी XYZ। सही हो गया। बाकी बिटकॉइन है वैसे, माहौल सही है। बिटकॉइन ने ना डाउन ट्रेंड ब्रेक किया काफ़ी अरसे के बाद, मतलब काफ़ी दिनों के बाद, अराउंड मेरा ख्याल ये बन जाता है कोई, यहाँ पे लास्ट टाइम 7 जून से, और 7 जुलाई एक महीना, और तकरीबन 40 के दिन बाद जो है ना यहाँ पे बनती हैं, कितनी कैंडल बन रही हैं यहाँ पे, तकरीबन 37 दिन बन रहे हैं। 37 दिन के बाद बीटीसी ने ये जो है ना अपना ट्रेंड ब्रेक किया है, डाउन ट्रेंड। अभी ये रीटेस्टिंग फेज में है बीटीसी, किसी भी टाइम शायद जंप लगा जाए ऊपर की तरफ। इंशाल्लाह। सही। तो ये इसका कुछ कह नहीं सकते, चलिए देखते हैं क्या बनता है। ठीक है। सही हो गया। हाँ जी। क्या हो गया उस्ताद जी? चलें। ठीक है। ओके ठीक है, फिर मैं एंड करता हूँ। सही हो गया। ओके अच्छा सर जी, ओके रिकॉर्डिंग भी की थी क्या ना? हाँ जी। हाँ, रिकॉर्डिंग सेंड कर उस्ताद जी दियो। भेज दियो। चलें ठीक है, ओके। ओके हो गया जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।